Good morning, children. Once again, I welcome you all in this online class organized by KVS RO Jabalpur. In this class, we will continue with the chapter 4 Material Metals and Non-Metals. Student, in previous class, we had learned what is elements, what are metals and non-metals, what are metalloids, and physical properties in metals and non-metals. Here in this lesson we will cover chemical properties of metals and non-metals, uses of metals and non-metals, and we will do some experiments also on the basis of reactivity of the metals. So let's start with the chemical properties of metal and non-metals. First of all, we should know the term chemical properties. In chemical properties, what are the things are involved? You are very much aware of the term physical property. In previous lesson, we discussed it like odor, appearance, melting and boiling points. On the basis of these points, physical properties are absorbed. But for chemical properties, we observe these points like reactivity of the substance, enthalpy of formation, etc. Enthalpy of formation means कि उसमें कितनी हीट लगेगी जिससे कि वो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, या रिएक्शन के बाद उसमें कितनी हीट निकलेगी, ये सब चीज़ें उसमें ऑब्जर्व की जा सकती है. इन दिस वी सी हाउ एनी सब्सटेंस रिएक्ट with other substances. What should be the conditions required in which they react? What would be the heat required? हीट की आवश्यकता है या नहीं, और यदि है तो how much heat does it require for reaction? So a chemical property is a property of a substance that is observed when a substance undergoes a chemical change. Chemical change, you know very well. In previous classes, class 6 and 7, you learned that in chemical change, new substance is formed, and properties of this new substance are different from the substance through which it forms. I hope chemical properties are clear to you. Now next, before starting the chemical properties of metals and non-metals, we must know about reactivity series of metals. In this series, metals are arranged according to their reactivity order. Most of the metals are kept at the top and least reactive metals are kept at the bottom of the series. जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सीरीज़ में ऊपर की तरफ होते हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो इस सीरीज़ में नीचे की तरफ रखे गए हैं. इन दिस सीरीज़ यू कैन सी रेड कलर्ड वर्ड हाइड्रोजन. Although hydrogen is non-metal, and here it is included for comparison only. हाइड्रोजन एक्चुअल में नॉन मेटल है, वो केवल यहाँ पर कंपैरिजन के लिए रखा गया है. मेटल्स टेंड टू readily lose electrons and forms cations. मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए तैयार होते हैं और पॉजिटिव आयन या कैटायन बनाने के लिए तैयार होते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. हाउएवर डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन. अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के लिए.
Non-reactive metals such as gold, platinum do not readily form oxides when exposed to air. जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, ये फ्रीली ऑक्सीजन के साथ होते हैं, फिर भी ये उनसे रिएक्शन नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है. द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट सिंस दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड. जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स ये आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के ऊपर की ये जितनी भी मेटल्स हैं वो डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देते हैं. हाइड्रोजन के ऊपर ये जितने भी मेटल्स हैं ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं. I hope it is clear to you. In this reactivity series, only a few important metals are taken, which are as per our syllabus basis. और भी बहुत सारे metals हैं, उनकी सीरीज़ होती है बस ये जो metals हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, इसलिए केवल इन metals को ही यहाँ पर शो किया गया है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, नेक्स्ट. Now, reaction of metal with oxygen. First of all, reaction with oxygen. Reaction with oxygen. Metals react with oxygen and form basic oxides. And these basic oxides react with water to form bases which turns red litmus to blue. मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और फर्दर अगर ये आगे बेसिक ऑक्साइड्स वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये बेसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे. और अगर हम उसको टेस्ट करना चाहें कि ये बेसिक है या एसिडिक है तो हम उसको लिटमस पेपर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम. These are highly reactive metals and react with oxygen vigorously at room temperature. ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ बहुत ही विगोरसली रिएक्ट करते हैं, जल्दी से ये बर्न हो जाते हैं बिना किसी हीट दिए. कोई भी हीट नहीं दी गई, केवल नॉर्मल टेम्परेचर पर इसे हम अपने रूम में किसी भी टेबल पर अगर हम इसे रखेंगे ओपनली तो ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और बर्न होने लगेगा. स्टूडेंट, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज रेज्ड हियर दैट व्हाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन और स्टोर्ड इन केरोसिन. एक क्वेश्चन आता है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है. तो हियर इज द आंसर. सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड इट इवन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन रूम टेम्परेचर. तो ये इसको केरोसिन में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम इसे खुले में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और बर्न हो जाएगा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट, मैग्नीशियम. अब बात करते हैं मैग्नीशियम की और आयरन की. मैग्नीशियम को तो कुछ हीट लगेगी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए. मैग्नीशियम यूं बर्न, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल नहीं है, इसको कुछ हीट देना पड़ेगी, कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और तब ये बर्न होगा.
और ये बर्न होने के बाद ब्राइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इक्वेशन दी हुई है 2 mg प्लस O2, mg मीन्स यहाँ पर मैग्नीशियम और O2 मीन्स ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन ड्राई एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। In moist air, iron get oxidized to form iron oxide, rust. आयरन को हीट देने पर ये कोई जलता नहीं है, ये इसकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ऐसी है कि जो मॉइस्ट एयर है, नमी वाली जो एयर है, नमी की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, और जिसे कि हम रस्ट कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ओके, हियर इज द इक्वेशन 4Fe प्लस 3O2, ये बनाएगा Fe2O3। 4 एटम यहाँ पर हमने लिए हैं आयरन के, 3 मॉलिक्यूल लिए हैं ऑक्सीजन के, जो बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स Fe2O3। ओके, नेक्स्ट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिंग। लेट्स डू अ डेमोन्स्ट्रेशन विथ मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल की बर्निंग के लिए हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं यहाँ पर, से आप देखेंगे कि किस तरह से मैग्नीशियम मेटल बर्न करता है। इसके लिए हमने लिया है मैग्नीशियम रिबन। हियर आई हैव टेकन ओनली स्मॉल ऑफ मैग्नीशियम रिबन। दिस इज मैग्नीशियम and this is burner and tong and the watch glass. And in that watch glass we collect magnesium oxide. When magnesium react with oxygen, here requires some heat to initiate the reaction. Magnesium burns in presence of oxygen and form MgO, magnesium oxide, and Mg burns with bright white dazzling light and very difficult to see that flame. And here I am going to hold this strip of magnesium and give heat. You can see the magnesium is burning with the dazzling white flame. Now as the reaction is completed, you can see that white colored powder of magnesium oxide. This is white color is or powder of magnesium oxide, and it is basic in nature. I hope you have enjoyed to see the demonstration. Now next, reaction of non-metals with oxygen. अब ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी हमने देखा कि मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। मेटल्स ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाए थे, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कार्बन और सल्फ़र। ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। ये जब दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये इनके ऑक्साइड्स बनाएंगे, और ये जो ऑक्साइड्स होंगे ये एसिडिक ऑक्साइड होंगे। इसमें कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी दिए हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन कैसा होगा। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स।
or hydroxide along with hydrogen. Different metals react at different temperature. डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पर वाटर से रिएक्ट करेंगे, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये ऑक्साइड और फिर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इसमें निकलती है. सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विगोरसली विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखा था कि ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और ये वाटर के साथ भी बहुत ही विगोरसली रिएक्ट करेंगे और अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे. मेटल फ्रॉम मैग्नीशियम टू आयरन रिएक्ट विथ स्टीम बट नॉट वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम टू आयरन, जो सीरीज़ में रिएक्टिविटी सीरीज़ में मैग्नीशियम से आयरन के वाले के बीच में जितने भी मेटल्स हैं वो वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते, वो उसकी स्टीम के साथ या उसकी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम. ये जो मेटल्स हैं ये वाटर के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते. तो ये रिएक्शन किस तरह से मेटल्स का हुआ है वाटर के साथ, ये आपने देखा. तो जितने भी मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उनके हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे. ओके, नेक्स्ट. Now let's do an experiment how sodium react with water. सोडियम जो मेटल है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है. लुक एट हियर, सोडियम इज रिएक्टिंग विगोरसली. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सोडियम मेटल किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ. एक बार स्लो मोशन में भी देखते हैं कि किस तरह से सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ. जैसे ही वाटर के साथ इसका कॉन्टैक्ट हुआ, ये बहुत ही विगोरसली वे में जो है वो बर्न होने लगा. देख रहे हैं आप. चिल्ड्रन, प्लीज़ डोंट डू सच टाइप ऑफ experiments your own. You can perform such type of experiment with the presence of your teachers only. Okay, I hope it is clear to you. Next, reaction of non-metal with water. non-metal water के साथ कैसे react करता है नहीं करता है. Actually non-metals do not generally react with water. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. क्यों नहीं करते? वाई दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अनेबल टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन H एंड O. जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो H और O के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक नहीं कर पाते. नॉन मेटल्स कैन नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, और वे इस हाइड्रोजन को इसमें से रिलीज़ नहीं कर पाते. एक्चुअली नॉन मेटल्स आर द एक्सेप्टर और गेनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ये नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाले होते हैं, एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, ये डोनेट नहीं करते. एंड दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स. वो किसी को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देंगे तो किसी के साथ रिएक्शन ईजिली नहीं कर पाएंगे. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड. अब मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे. मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म देयर साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस.
जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो उनके सॉल्ट बनाएंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे। द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस इसमें निकली या नहीं निकली, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि उसके पास हम किसी बर्निंग ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, किसी फ्लेम को लेके जाएंगे, तो वो पॉप साउंड के साथ वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जलेगी। मेटल्स बिलो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हाइड्रोजन के नीचे के जो मेटल्स हैं, मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अब ये भी चूँकि मेटल्स हैं बट ये लेस रिएक्टिव हैं और ये लोग एसिड में से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाते, इसलिए ये उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ HCl। यहाँ पर हम जिंक मेटल की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखते हैं कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है नहीं हो रही है, देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। इसमें आप देख रहे हो कि स्टैंड में हमने एक टेस्ट ट्यूब को लगाया हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला है। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अब हमने एक जिंक लिया है और जिंक को इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप देख रहे हैं कि रिएक्शन स्टार्ट हो गई है और हमने एक और टेस्ट ट्यूब लिया है जो उल्टा उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख दिया है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक जो रिएक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होकर उस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगी। अब इसको हम अलग कर लेंगे और अब देखेंगे कि ये किस तरह से ये एक फ्लेम को हम जो लोग यहाँ पर ले जाते हैं उसके पास, और हम देखेंगे तो आपने देखा किस तरह से पॉप साउंड के साथ ये हाइड्रोजन गैस वहाँ पर बर्न हुई। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो ये प्रूव करता है कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड्स। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते। क्यों? कारण वही है, यहाँ भी वही कारण है जैसे वाटर के साथ हुआ था। एसिड्स में भी ये हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस नहीं कर पाते और कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाती। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो ये जो H+ आयन है इसको ये नॉन मेटल्स जो हैं यहाँ से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, यहाँ से उसे हटा नहीं पाएंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, किन कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? जब कोई एक मेटल किसी दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्यूशन में से, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेटल। अब वो मेटल कैसी होगी? मोर रिएक्टिव। A more reactive metal displace a less reactive metal
from its compound in aqueous solution. Such reaction is known as displacement reaction. जब कोई more reactive metal किसी less reactive metal को उसके aqueous में उसके watery solution से वहाँ उसे displace कर देती है तो उसे हम कहते हैं displacement reaction. For example, when iron nail put in copper sulfate, जब हम किसी आयरन नेल को, आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, देन कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस. कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू, हम सभी जानते हैं. लेकिन जब हम इसमें आयरन नेल्स को डालते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाता है. और क्या होता है? एंड अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज सीन ऑन आयरन नेल. और आयरन नेल के ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाती है, कॉपर वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है. यहाँ पर इक्वेशन के थ्रू शो किया गया है. Fe आयरन ये रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से और इसके रिएक्शन के बाद चूँकि कॉपर सल्फेट ब्लू है तो यहाँ पर आयरन सल्फेट फॉर्म हो रहा है. आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है और साथ में कॉपर उससे अलग हो गया. आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, इसके अगेंस्ट हम उल्टा करें इसको कि आयरन सल्फेट में अगर हम कॉपर को डालें तो देयर इज़ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है देन आयरन, तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इस कारण से कोई रिएक्शन नहीं होगी. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कि हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट में हमने आयरन नेल्स को डाला था तो उसमें कलर चेंज हो गया था कॉपर सल्फेट का और कुछ कॉपर का डिपोजिशन उस आयरन नेल पे आ गया था. तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से ये होता है. इसमें हमने कुछ आयरन्स लिए हैं, आयरन नेल्स, साथ में रेजमाल का पीस लिया है, पेपर पीस, 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, कुछ थ्रेड लिया है, एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है. अब ये जो 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें हमने लेबल किया है ए एंड बी, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट डालेंगे. ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया है, ए में भी और बी में भी. दोनों का एक कलर जो है वो ब्लू कलर है. अब टेस्ट ट्यूब ए को हमने लिया है, उसे स्टैंड में लगा दिया है. अब इस टेस्ट ट्यूब ए में हम नेल्स को थ्रेड के थ्रू वहाँ पर हैंग करेंगे, लटका देंगे और 20 मिनट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देंगे. अब 20 मिनट के बाद जब हम देखेंगे कि नेल्स के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो गया है, नेल्स के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो चुका है यहाँ पे और कलर भी जो है उसका चेंज हो गया है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें कलर लाइट ग्रीन कलर हो गया है. तो इक्वेशन जो भी हमने पहले पढ़ी थी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जिसमें आयरन सल्फेट मीन्स या फेरस सल्फेट बन गया है और कॉपर इसमें से अलग हो गया है जो कि आयरन में डिपॉजिट हो गया है. एक्चुअल में इसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह से आयरन जो है वो नेल्स में से आयरन के जो एटम्स हैं वो यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ और फेरस सल्फेट बना रहे हैं, आयरन सल्फेट बना रहे हैं और कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं और कॉपर जो है वो आयरन नेल पे जाकर डिपॉजिट हो रहा है. तो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये एक्सपेरिमेंट देखकर. तो एक्सपेरिमेंट्स
से ये शो कर रहा है एक्सपेरिमेंट कि किस तरह से जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं वो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, और साथ ही साथ इनके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, ठीक है। तो जिसमें जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को किस तरह से उनके एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मेटल्स। अब हम आते हैं मेटल्स के यूजेस पर, उनके क्या यूज़ हैं। डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट यूजेस हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक वायर फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। कॉपर एल्यूमिनियम का हम वायर बनाने में यूज़ करते हैं। जिंक को हम यूज़ करते हैं आयरन के ऊपर कोटिंग के लिए, गैल्वेनाइजिंग में। सिल्वर एंड गोल्ड, प्लेटिनम आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो इनका जो साइन है वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स पार्ट। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम जो हैं ये यूटेंसिल्स, जो हमारे घरों में हम खाना बनाते हैं वो बर्तन, और कुछ मशीन के पार्ट्स बनाने में इसका उपयोग करते हैं। मरकरी भी एक मेटल, इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर, यू नो वेरी वेल। लेड इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर ऑटोमोबाइल बैटरीज। जो हमारी गाड़ियों में जो बैटरीज होती हैं उन बैटरीज में लेड का उपयोग किया जाता है। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के क्या यूज़ है? नॉन मेटल्स भी बहुत यूज़फुल है। हाइड्रोजन इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इंडस्ट्रियल केमिकल्स। हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं अमोनिया बनाने में, इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज टू रेफ्रिजरेंट इन स्टोरिंग ह्यूमन ऑर्गन्स एट लो टेम्परेचर। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ जो है वो ह्यूमन ऑर्गन्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सल्फर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ड्रग्स एट्सेट्रा। सल्फर का यूज़ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में करते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने में, या फिर जो मेडिसिन्स होती है जो सल्फर पर बेस होती हैं वो बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट, सल्फर इज़ यूज्ड फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड मेकिंग गन पाउडर। सल्फर का यूज़ बारूद बनाने में भी होता है, और साथ ही साथ जो है रबर के वल्कनाइजेशन प्रोसेस में भी होता है, मतलब रबर को डिफरेंट फॉर्म में मोल्ड करने के काम आता है। नेक्स्ट, फास्फोरस इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। फास्फोरस जो नॉन मेटल है उसका फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। सिलिकॉन का यूज़ सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है बनाने में, और इसका यूज़ जो है माइक्रोचिप्स में होता है। माइक्रोचिप्स जो कि आपके मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें होता है। क्लोरीन इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करने के लिए क्लोरीन लिक्विड का या क्लोरीन टैबलेट का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन जानते हैं हम सभी। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन ब्रीथिंग सपोर्ट सिस्टम ऑफ पेशेंट। जब पेशेंट को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं तो ऑक्सीजन की जो बेसिक नेसेसिटी है हमारी, ओके। तो ये सब थे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। I hope all these topics are very much clear to you. This is the end of the chapter, material, metals and non-metals. Thank you and have a nice day.